चलो करें स्टार्ट। वीडियोस ऑन कर लो सब लोग। कीप द वीडियोस ऑन। Now, what was provision for depreciation account? What was the provision for depreciation method? Does anyone remember? The last lecture we studied about it. What do you do in provision for depreciation? What is the main difference? Main difference. The original value of asset remains same. डेप्रीसिएशन कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे? एसेट का जो भी जमा हुआ डेप्रीसिएशन है, that goes to PFD account. So instead of passing the journal entry of depreciation to asset, what do we pass? We pass depreciation to PFD account. तो एसेट को कम नहीं कर रहे हो इमीडिएटली, उसको जमा कर रहे हो अलग अकाउंट में, दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट. इज दैट क्लियर? डेप्रीसिएशन टू आगे, डेप्रीसिएशन टू पीएफडी, ये ध्यान रखना है. तो एसेट में सिर्फ कॉस्ट दिखेगा और उसका अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन विल बी प्रोविजन फॉर. ओके, नाउ let us the problem of FIM. This is, remember, this is not a different method. It is not a different method. It's just a different presentation. It is just a different presentation. Like for example, closing stock. Closing stock का purchase से minus नहीं करते और trading credit में दिखाते. But stock of stationery आप stationery में से minus करके दिखाते. Previous to FIM. So now, question number 14, 1 for 14 ले लो सब लोग. Let's take number 14 and let's try to understand how to record the transactions under PFD again. 14th problem. A machine was purchased for 23,500 on 1st July 1990. Now, is this the first year or a continuing year? First year. First year. This is the first year of business, right? Last problem में हमने continuing year देखा था, जहाँ पे already 1 lakh और 40,000 का balance था. 1 lakh और 40 का balance का मतलब already 4 साल से वो हो रहा है depreciation, बराबर है? यहाँ पर तो कोई opening balance दिया है तुमको? I don't think so. There is any opening balance, right? So this is the first year of business. तो यहाँ से शुरू हो रहा है. Machinery was purchased for 23,500 on 1st July 90. Its installation charges were 1,000. Import duty was 300. Octroi duty was 200. All these expenses, what are we supposed to do? Add to the cost. Add to the cost. So what will be my total cost of machine now? 25,000. 25,000. And what should be your journal entry for buying the machine? Machinery to bank. Machinery to bank account. या machinery to cash bank account. It is on 1st July 90. एंड में पढ़ लो, अपने को 3 साल का बनाना है. 1991, 91, 92, 92, 93. ओके, और ये मार्च एंडिंग है. सम इज मार्च एंडिंग. तो ये 1st जुलाई को लिया हुआ है हमने, बैलेंस नहीं है, खरीदा है. 1st जुलाई 90 को क्या एंट्री करोगे? टू बैंक अकाउंट. टू बैंक अकाउंट 25,000. To bank account 25,000. I bought a machine on 1st July. Then on 31st December 91, another machine was purchased for 10,000. Tell me, think and tell me, is 31st December 91 in the same financial year or next financial? Same. Next. सर मार्च है ना?
Next. तो मार्च है, Same, 31st मार्च है. मार्च एंडिंग है बॉस. पढ़ो. same. मार्च सेम फाइनेंशियल ईयर, सेम था तो फाइनेंशियल. सेम. अप्रैल टू मार्च का साल है ना, तो अप्रैल 90 को स्टार्ट होगा और मार्च 91 को खत्म होगा ना यार, बराबर ना. तो सेम ईयर में आएगा, 1991 में ही आएगा. ऑन 31st March 91 I bought another machinery, तो वापस entry shall be to bank of 10,000 rupees. Comfortable? All of you got this? Two machines bought in the current year. I think this is enough for the current year. The next transaction is on 1st October 91. So that falls in the next year. So let us calculate the depreciation now. We are doing FIM. Take your calculators. This is a simple calculation. Okay. So calculate करो दो machine का depreciation. Depreciation for the year 1991. I just divide the machine into M1 and M2. Machine 1 and machine 2. Machine 1 was worth 25,000 ka 10% for how many months you are supposed to take for this? 9 months. July, August, September, October, November, December, Jan, Feb, March. 9 months. So I think that comes to 1875. Please check. And the second machine of 10,000, will you have any depreciation on that? No, because it was bought on the last date of the year, right? So 1875 is your total depreciation. And now, Kalrav, can you tell me the journal entry for this? Depreciate to PFD. Very good. It is depreciation to PFD. तो depreciation में क्या लिखना है? To PFD account. हर Provision एक for सब में डेप्री depreciation. बनाना जरूरी है, पूछा नहीं है तो. नहीं. पूछा नहीं है तो बनाने की जरूरत नहीं है. ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं. ओके. पूछा हो तो ही करना. Only if it is specified, do it. This is just for your understanding I'm making. Okay. खाली तुमको याद रहे कि यहाँ पे corresponding entry is not asset, it is PFD. So depri में 2 PFD and PFD में credit side by depreciation. PFD में credit side by depreciation. This is 187. तो हमने क्या किया, एसेट में से कम नहीं किया, लेकिन इसको दिखा दिया पीएफडी अकाउंट. Okay, is that clear? Now your one is finished. Let's balance. एसेट को बैलेंस करो. पहले तो एसेट को क्लोज करके बैलेंस करो. टोटल इज 35,000. By balance CD is 35,000. 31st March 91. 1491 को यही बनेगा टू बैलेंस BD 35,000. तो एसेट अपना कॉस्ट पे ही रिफ्लेक्ट हो रहा है. करेक्ट. And PFD account, will you transfer provision for depreciation anywhere or you will just carry forward it as balance? Carry forward. Carry forward. उसमें जमा हुआ depreciation है, हर साल carry forward हो. जैसे asset carry forward हो रहा है वैसे ये भी carry forward हो. ये negative asset समझ लो. asset में से minus नहीं किया, जमा करके यहाँ पे दिखा रहे हैं, negative asset है ये भी carry forward होगा. It is like a liability. 1875 is the total and that itself is the balance. वन 491 को ये क्या बनेगा, बाय बैलेंस BD 1875. ओके.
Now depreciation account भी देख लो, where you will put depreciation for the current year. P&L account. Depreciation for the current year वो तो P&L में ही जाना है, तो by P&L account final accounts के दिन पे चला जाएगा, बराबर. इसका भी कहानी खत्म हो गया. ये अपना फर्स्ट ईयर इज फिनिश्ड. First year is finished. All right. Now we go to year 2. यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स? फर्स्ट ईयर क्लियर हुआ सबको? Sorry. Next one. On 1st October 91, a new machine was purchased for 5,000. 1st October 91. I think it falls in the year 91, 92. So what should be the journal entry for this, Vidhi? Another machine we are buying, so it should be what? Machinery to bank. Machinery to bank. 1st October 91, it should be machine to bank. मशीन तो कॉस्ट पे ही दिखा रहे हैं. कितने का है वो? 10,000. खरीद रहे हैं, ऐड करके दिखा रहे हैं. कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, आया तो भी कॉस्ट, गया तो भी कॉस्ट. कॉस्ट पे ही रहेगा ये. सर 5,000 है ना? 5 है. ओके सॉरी, 5,000. Okay, 1st October 91 को 5,000 का खरीदा. Then on 1st April 92, the first machine was sold for 13,500. Shama, 1st April 92, does it fall in the same financial year or next financial? Same financial. Next financial. पक्का? Yes, sir. Next financial. Exactly. 91, 92 is the current year. So April to March. March में खत्म हो जाएगा. 92, 93 में आएगा ना 1st April 92. That falls in the next year. So I think इस साल का अभी कहानी खत्म. Again, go back to depreciation. Let us calculate depreciation. Dhara Mehta, what should be the journal entry for depreciation now? Depreciation to PFD. Perfect. Depreciation to PFD. And calculate कैसे करना है? How many machines do we own now? We are doing FIM. So I think we own, this is for the year 91, 92. I think we own 3 machines. Okay. 3 machines. अलग अलग कर सकते हो या यहाँ से ना ये ओपनिंग बैलेंस को साथ में ले सकते हो. 35,000. ये ओपनिंग बैलेंस जो है ना 35,000, इसमें पुराना सब कॉस्ट पड़ा हुआ है, उसको एक साथ लेके 12 महीना खत्म कर सकते हो. अलग अलग किया तो भी चलेगा. 25 पे अलग, 10 पे अलग, 5 पे अलग, या सीधा 35 और 5. 35 पे तो 12 महीना ही होने वाला है और वो कॉस्ट ही है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट बेसिस पे मेंटेन कर रहे हैं. तो 91, 92, just for your understanding, I am doing it अलग अलग. M1, M2, M3. पहला वाला था 25,000 का, उस पे 10% और 12 महीना 2,500. दूसरा वाला था 10,000 का, उस पे भी 12 महीना, क्योंकि इन द करंट ईयर वो 10,000 वाला यू हैव यूज्ड इट फॉर फुल ईयर. एंड तीसरा जो इस साल खरीदा है 5,000 का, 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? व्हेन डिड वी परचेज? 6 months. 6 months. वेरी गुड, 6 months. ओके, 1st October को खरीदा है 250. तो आई थिंक माय टोटल डेप्रिसिएशन इज 3750. बराबर है? 3750 रिकॉर्ड करना है. एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन में 2 PFD 3750 और PFD में आएगा बाय डेप्रिसिएशन 3750. डेट इज 31st March 92. बस डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया. अभी क्या करने का? बैलेंस. तो पहले एसेट को क्लोज करना है. 31st March 92 एसेट में क्या आएगा? तो सिंपली बाय बैलेंस कैरीड डाउन
40,000, 40,000, and the balance 40,000. That will become 2 balance brought down 40,000 on 1492. Similarly, you close down your provision for depre account. उसमें भी आएगा 2 balance CD. इसका जमा हुआ depre अभी कितना हो जाएगा? Plus 147 5625 5625 टोटल डेप्रिसिएशन जमा हो गया है इस पे 5625 on 31st March 92 and on 1492 this will be brought forward as by balance BD 5625 and depreciation तो automatically P&L में चला जाएगा हर साल का individually loss के फॉर्म में by P&L 3750. So this is your year 2. All of you clear? First 2 years we just charged the depreciation. It didn't go to the asset account, it went to the PFD account. It didn't go to the asset account, it went to the PFD account. Is that clear? Comfortable? Can you all tell me what was the WDV of the asset at the end of year 1? What was the WDV of the asset at the end of year 1? 35,000 minus 1875. Very good. It will be 35,000 minus 1875. बाकी लोग को समझा? 35,000 minus 1875. How did I arrive at that value? The closing balance of asset minus the closing balance of PA. Closing balance minus the closing of PA. Closings of asset minus the closing balance of PF. You will get the written down value for the first year, book value for the first year. What about second year? 40,000 minus 5625. 40,000 minus 5625. 40,000 minus 5625. This will be my closing WDV at the end of year 2. This is what we will show in the outer column in the balance sheet. Balance sheet के outer column में यही जाता है WDV. बता था ना, asset minus total of PF. Got it? All right. Next one, third year. अभी आता है गम्मत सेल का. ठीक है? सेल का खत्म करना अपने को ध्यान से देखना एकदम. थर्ड ईयर में क्या हो रहा है? On 1st April 92, the first machine was sold for 13,500 and a new machine was purchased for 8,000. 1st April 92 falls in the third year and you are selling, so you make a working note for sale. Working note for sale to calculate profit or loss on sale. So you start with the original cost as on. ये वर्किंग नोट पूरा सेम है, कोई चेंज नहीं है. कौन सा वाला मशीन बेचा था? फर्स्ट मशीन. तो ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन क्या लिखोगे? 1790. 1 जुलाई 90 को जो खरीदा हुआ मशीन था वो बेचा है. 25,000 की कॉस्ट थी. अभी करते जाओ डेप्रिसिएशन इसको डेट ऑफ सेल तक. तो 91 में आई थिंक वी हैव यूज्ड इट फॉर 9 months. 1875 था. 23,125. WDV as on 1491. 9 महीने बाद 23,125. Perfect. Then you get depreciation for the year 91, 92. 12 महीना यूज किया पूरा उसको. कितना आएगा? 2,500. Then you arrive at WDV as on 1492 लिख दो. 12 महीने बाद तो 1492. 20,625 मिला. 20,625. Now
20,625 का एसेट है 1492 को. चेक इन द करंट ईयर व्हेन हैव वी सोल्ड इट. In the current year, when have we sold it? Start of the year. Start of the year. So have we used it for any number of months in No. the current year? No. So no need to charge further depreciation. Just compare it with the sale value. What is your sale value? Sold for 13,500. I think we are having a loss on sale of how much? 7625. 7125. 7125. 7125. 20,625 minus 13,500. 7125. चलो record करना है. How many steps now with PFD at the time Four. of sale? याद है? 5 steps. इस सब में 4 बराबर है, but overall 5. Okay, 5 steps. And order is also important. I'll give you in writing all the steps now. इसके बाद. What was the first step? Do you remember? Logical actually. What was the first step? Depreciation for current year. Depreciation for the current year. Depreciation for the current year. वो मत भूलना. So was there any depreciation for the current year? No. अगर होता तो एंट्री क्या बनती? Depreciation to PFD. वापस वही. तो depreciation to PFD. तो PFD में by depreciation. Is that clear? Now. In the second second step, sir. What is the second step? Disposal to machinery. देखो दो important point अलग करते हैं PFD मेथड को. हम लोग क्या करते हैं, जो एसेट बेच रहे हो ना उसको अलग कर दो. Remove it from the cost and remove its accumulated depreciation from PFD. उसको अलग ही करो ट्रीट और बाद में उसका सेल खत्म. रिमेनिंग ये जो एसेट है, ऑल एसेट, उसमें से जो बिका हुआ एसेट है उसको अलग अकाउंट में ट्रांसफर करो. व्हाट इज दैट अलग अकाउंट? एसेट सेल और एसेट डिस्पोजल अकाउंट. एंड व्हाट डू यू मीन बाय एसेट सेल अकाउंट और एसेट डिस्पोजल? इट इज एन एसेट अकाउंट, छोटा एसेट अकाउंट. जो बिका हुआ एसेट है ना, वो जैसे तुम्हारे पास 1 लाख का फर्नीचर था, उसमें से एक 10,000 का टेबल बेच दिया, तो अभी बचा कितना? 90. वो 90 अलग रखो, ये 10 को अलग अकाउंट में डालो. एसेट अकाउंट ही है. एसेट डिस्पोजल अकाउंट का मतलब है स्मॉल एसेट अकाउंट. सिंपल एज दैट. सो हम लोग क्या करते हैं, मेन एसेट में से इसको निकाल के एसेट सेल में ट्रांसफर करते हैं. तो एंट्री क्या बनेगा इसका? छोटा एसेट बड़ा और बड़ा एसेट घटा. तो छोटा एसेट अकाउंट डेबिट टू बड़ा एसेट. तो इट विल बी एसेट सेल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट. डिड यू अंडरस्टैंड दैट एंट्री? एसेट सेल में डेबिट होगा, इधर आया ये बढ़ गया. एसेट सेल में टू एसेट की जगह नाम लिखना यहाँ पे मशीनरी. एसेट सेल में टू मशीनरी अकाउंट. दिस इज ऑन डेट ऑफ सेल 1492. कितना लिखोगे? कॉस्ट लिखोगे. कॉस्ट ऊपर कॉस्ट निकालना है, यहाँ पे कॉस्ट लेके आना. व्हाट वाज द ओरिजिनल कॉस्ट? 25,000. एसेट सेल में टू मशीनरी और मशीनरी में बाय एसेट सेल अकाउंट या एसेट डिस्पोजल अकाउंट. कितना है? 25,000. तो ये 25 को हमने अलग कर दिया कॉस्ट में से. तो कॉस्ट में से तो कॉस्ट हटा दी इसकी. एक और चीज निकालनी है इसकी अलग से. क्या निकालना है? इसका accumulated depreciation. Where is the accumulated depreciation of this asset? अब तक का जमा हुआ डेप्री कहाँ पर पड़ा हुआ है? Obviously PFD में पड़ा हुआ है. तो ये सब तुम हर साल जो चार्ज कर रहे थे, इसमें इसको भी चार्ज कर लिया है तुमने. तो अभी तो रख के मतलब नहीं है, क्योंकि अभी तो बेच रहे हो. अभी तो रिमेनिंग एसेट का डेप्रीसिएशन यहाँ पे दिखना चाहिए. तो रिमूव द accumulated depreciation from your PFD account. उसका एंट्री क्या होगा? थिंक अबाउट इट. PFD से डेप्री कम कर रहे हो ना, निकाल रहे हो, तो PFD डेबिट होएगा. PFD घट रहा है, accumulated depreciation घट रहा है, और एसेट भी घट रहा है. ये वाला एसेट भी घट रहा है क्योंकि उसके क्रेडिट में जाके तुम चार्ज करोगे. डेबिट में कॉस्ट लिखा मतलब एसेट बढ़ा. अभी जमा हुआ डेप्री क्रेडिट में लिखोगे मतलब उसका WDV दिखा रहे हो, हटा रहे हो. तो व्हाट आर वी डूइंग? PFD को घटाया और एसेट को भी घटाया. लायबिलिटी और एसेट दोनों घट रहे हैं.
तो लायबिलिटी डेबिट होगी और एसेट क्रेडिट होगा। एंट्री बनेगा इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू एसेट सेल अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू एसेट सेल अकाउंट। अब एकदम ध्यान से अमाउंट देखना, कहां से मिलेगा ये अमाउंट? अपने वर्किंग नोट से मिलेगा। ये वर्किंग नोट जो तुमने बनाई है ना सेल की, इसमें एकदम ध्यान से देखो, पूरा जमा, जितना साल का जमा हुआ डेप्री है ना, सबको ऐड करो। 1875 प्लस 2500 कितना होता है? 4375। 4375 का टोटल जमा हुआ डेप्रीसिएशन है। अच्छा, अगर करंट ईयर का कुछ होता है ना तो वो भी ले लेते। अपने को टारगेट है पूरा डेप्रीसिएशन निकालना है। जो एसेट बेच रहे हो उसका पूरा डेप्रीसिएशन खाली करो। तो पीएफडी को पूरे डेप्री, करंट ईयर का तो कुछ नहीं है, लास्ट सम में था, हमने जो फर्स्ट सम किया था कल उसमें था, तो उसको भी ले लेने का। तो जितना डेप्री है सबको ऐड करो 4375 और मिला के क्या करना है, यहाँ से रिमूव कर देना है। तो 4375 पीएफडी में आएगा टू एसेट सेल अकाउंट एंड एसेट डिस्पोजल या सेल में आएगा बाय पीएफडी अकाउंट। एसेट सेल या डिस्पोजल में आएगा बाय पीएफडी अकाउंट 4375। 4375 डेट इज 1492। अभी फोकस ऑन दिस छोटा एसेट अकाउंट। ये छोटा एसेट है ना, ये अपना WDV मेथड में आ गया। जो ओरिजिनल मेथड था ना WDV, उसमें आ गया। देख रहे हो ध्यान से, इधर कॉस्ट है 25, इधर जमा हुआ डेप्री है 4375, तो नेट WDV कितना बना इसका? 20,125। ऑटोमेटिकली WDV पे दिखेगा। इज दैट क्लियर? तो जो बेच रहे हो उसको अलग करो और उसको WDV वैल्यू पे दिखा देने का, सिंपल एज दैट। कॉस्ट भी अलग, अक्यूमुलेटेड डेप्री भी अलग। अब ये WDV पे आ गया ये एसेट, स्टोरी खत्म। तो पहला 3 स्टेप क्लियर है सबको? व्हाट आर द फर्स्ट 3 स्टेप्स? फर्स्ट 3 स्टेप्स: चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर, then remove cost from cost, remove accumulated depreciation from PFD and transfer it to asset sale account. अभी तो नॉर्मल है, ये WDV पे आ गया, जैसे नॉर्मल सेल करते हो वैसे सेल करने का। तो एंट्री क्या होगा सेल का? बैंक टू एसेट। तो बैंक टू कौन सा एसेट? बड़ा एसेट कि छोटा एसेट? छोटा एसेट। बैंक टू एसेट सेल, तो एसेट सेल में बाय बैंक कितने में बेचा उसको? 13,500 में बेचा। 13,500 बेचा। ऑन विच डेट? 1492। एंड लॉस हुआ कि प्रॉफिट? आई थिंक लॉस हुआ। छोटे एसेट पे लॉस हुआ तो बाय लॉस ऑन मशीन। लॉस ऑन मशीन टू मशीन होता है ना, इधर बाय लॉस ऑन मशीन कितना है? 7125। ये मशीन अकाउंट ही है, खाली छोटा मशीन अकाउंट है, सेल के लिए ओपन किया। इज दैट क्लियर? 5 स्टेप्स। अच्छा, यहां पर तो हमने बेचा, अपने को कुछ प्रॉफिट हुआ, कुछ लॉस हुआ। समझो स्क्रैप वैल्यू वाज नील, मतलब कुछ पैसा नहीं मिला और पूरा लाइफ खत्म हो गया एसेट का। समझो एक एसेट था जिसका कॉस्ट था 10,000, उसको हमने पूरा 10 साल वापरा और पूरा 10 साल का डेप्री जमा कर दिया पीएफडी। तो कॉस्ट था 10,000, तो उसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होगा आफ्टर 10 इयर्स? 10,000। 10,000। अगर उसको डिस्कार्ड करना है तो क्या करोगे? ओपन तो यही करोगे, एसेट सेल अकाउंट ही ओपन करोगे। बट समझो नो स्क्रैप वैल्यू, जीरो वैल्यू, तो एंट्री क्या होगी? 10,000 का कॉस्ट है और बैंक और लॉस का प्रॉफिट का एंट्री नहीं, बैंक है ही नहीं, सेल वैल्यू है ही नहीं, सेल वैल्यू इज 0। तो पूरा लॉस सिर्फ आएगा। 2 ही एंट्री आएगी, सिर्फ डिस्पोजल 2 ही टू एंट्री मशीनरी, आएगी, पीएफडी 2 टू ही एंट्री आएगी। क्या आएगी? मशीनरी में बाय एसेट सेल और पीएफडी में टू एसेट सेल। कॉस्ट में से कॉस्ट निकाला 10,000 और
पीएफडी में से डेप्री निकाल दिया 10,000, तो 10 नलिफाइड, सेल वैल्यू है ही नहीं मैंने बोला, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। खाली जो खत्म हो गया था कॉस्ट, उसको कॉस्ट में से निकाला और जमा हुआ डेप्री डेप्री में से निकाला, और कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि पूरा डेप्रीशिएट हो चुका है। डिड यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट एग्जांपल में करेंगे ये वाला एग्जांपल समझा अभी सेल का सबको? इसमें कोई डाउट्स? चलो इसके बाद खत्म करना है। एक और आई थिंक खरीदा है, वन मोर वाज परचेज्ड फॉर 8,000। ओके, वन मोर वाज परचेज्ड फॉर 8,000। अगेन यू गो बैक टू एसेट, एसेट में आ जाओ, कभी खरीदा था सेम डेट पे, 1492 को टू बैंक अकाउंट 8,000, टू बैंक अकाउंट 8,000, ठीक है। नाउ व्हाट इज लेफ्ट आउट? डेप्रीसिएशन। एफआईएम कर रहे हो, बहुत इजी होता है डेप्री, इंडिविजुअली भी कर सकते हो या ओपनिंग बैलेंस लेके करो, उसका कॉस्ट ही है वहां पे। मैं अलग अलग कर रहा हूँ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। डेप्रीसिएशन फॉर द थर्ड ईयर 93, 94, 93, 94। मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4, 4 मशीन में से आई थिंक पहला वाला मशीन तो बेच दिया है हमने, तो उस पे डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है अभी। मशीन 2 था आई थिंक 10,000 का, 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? कितना टाइम का करोगे इस पे? ऊपर से टपका हुआ है 12 months, 12 by 12, आई थिंक दैट इज 1,000। दूसरा वाला था 5,000 का, वो भी लास्ट ईयर खरीदा था हमने, तो ये साल हम कितना यूज किया है उसको? हाउ मेनी मंथ्स हैव वी यूज्ड इट फॉर? आई थिंक दैट इज 500। एंड थर्ड वाला इस साल खरीदा है 8,000 का, 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? Full year. Year start to end 12 months, that is 800। 2,300 आना चाहिए टोटल डेप्रिसिएशन, ये direct for 2,300 on the remaining assets। हाँ बोलो। ये डायरेक्ट नहीं कर सकते 48,000 और 25,000 का गया तो 23,000 पे 10%। हाँ मैंने बोला तो सही, वैसे कर सकते हो ना, वही तो बोला स्टार्टिंग में। ये 40,000 है, इस पे सीधा 12 महीना ले लो, या 8,000 पे अलग से 12 महीना ले लो। यस, कॉस्ट ही है वहां पे, यू कैन डू दैट। लास्ट सम में वैसे ही किया था। ओके, नाउ charge depreciation, what should be the journal entry? Radhika, sorry, Radhika, what should be the journal entry? Depreciation to PFD. Perfect, depreciation to PFD, तो PFD में by depreciation account another 2,300 on 31st March 93, और डेप्री अकाउंट में आएगा टू PFD 2,300 31st March 93, and then what is left out now? तो I think balance। अगर आप एसेट को बैलेंस करोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा इधर क्या दिख रहा है आपको, अभी कॉस्ट दिख रहा है। कॉस्ट 48 minus 25 is 23,000, which is the cost of all the remaining machines. This is the cost of all the remaining machines on 1493 to balance BD 23,000. Similarly, you shut down your PFD. इसको भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे? Only the accumulated depreciation of all the remaining assets. So 5,625 plus 2,300 is 7,925. 7,925 minus 4,375 is 3550. 3,550. What is this 3,550? This is the accumulated depreciation on all the remaining assets. 3,550.
3550. If I ask you what is the WDV at the end of third year? 23,000 minus 3550. 23,000 minus 3550. That is the book value at the end of year 3. All of you got that? And डेप्री को भी बंद करना है. That goes to P&L as usual. हर साल का loss तो by P&L 2003. खाली हमने जो डेप्री था वो एसेट में से माइनस ना करके अलग अकाउंट में दिखाया हुआ है. ये खाली खम अकाउंट है, हवा है, हवा है. जो नेगेटिव एसेट का पोर्शन है वो दिख रहा है यहाँ पे. दैट्स इट. इज दैट क्लियर? ऑलराइट. इसी के नीचे लिखना है, अभी सबको लिख दो, स्टेप्स टू फॉलो एट द टाइम ऑफ सेल. छोटा सा नोट बना के लिखना. ये खाली आपको याद रहे, कहीं मिस्टेक ना हो इसके लिए दे रहा हूं. बाकी लॉजिकल स्टेप्स है. ओके, नो नीड टू मक द स्टेप्स. Steps to follow at the time of sale. Steps to follow at the time of sale. Okay. Number 1, charge depreciation for the part of the year. Charge depreciation for the part of the current year. Charge depreciation for the part of the current year. Charge depreciation for the part of the current year. उसमें एंट्री लिखना. व्हाट इज द एंट्री? डेप्रीसिएशन टू पीएफटी. डेप्रीसिएशन टू पीएफटी. चार्ज depreciation for the part of the current year. Entry is depreciation to PF. Second, remove the cost of assets sold. Remove the cost of assets sold from the original cost of asset. Remove the cost of assets sold from the original cost of asset. Remove the cost of assets sold from the original cost of asset account. Original cost of asset account. Entry क्या होगा इसका? Entry will be asset sale account debit. Asset sale account debit to asset account. Asset sale account debit to asset account. Asset sale account debit to asset account. Third step, remove accumulated depreciation and transfer it to asset sale account. Remove accumulated depreciation of assets sold. ऐसा लिखना है. Remove accumulated depreciation of assets sold and transfer it to asset account. Remove accumulated depreciation of assets sold and transfer it to asset account. Entry क्या होगा? It will be PFD account debit to asset sale account. Provision for depreciation account debit to asset sale account. Provision for depreciation account debit to asset sale account. Okay. Then, what is the next step? Record sale value. Sale. Record your sale entry. Record the sale entry. Record the sale entry. That is bank account debit to asset sale account. Record the sale entry. It is bank account debit to asset sale account. Bank account debit to asset sale account. Okay. Next one is record your profit or loss on sale. Fifth step. Record your profit or loss on sale. Record your profit or loss on sale.
record your profit or loss on sale. Entry is ऐसे लिखना, for loss it is loss on asset to asset sale account. For loss it is loss on asset to asset sale account, and for profit it is asset sale account debit to profit on sale account. Asset sale account debit to profit on sale account. Asset sale account debit to profit on sale account. Got it? Now, next sum. Sum number 2 नहीं किया ना हमने, second sum, please check. Sum number 2. Sum number 2 नहीं किया. Problem number 2 लेना. अभी उधर machinery दिया है. We are doing the same with PFD, okay? We are doing the same sum with PFD. Problem number 2. Same sum with PFD. Problem number 2. Draw कर लो. Draw for sum number 2. 4 accounts. We are doing with PFD, okay? Any damn problem which we have done till now can be done with PFD. कोई भी problem आप जो normal तरीके से करो PFD से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं. Normal खाली वो presentation अलग हो रहा है. Any problem can be done with PFD. So, problem number 2 के लिए draw कर लो. 4 accounts. So sum number 2, second sum. एक ही साल का बनाना है अपने को. That is for the year 1990. 31st December 1990. Just 1 year. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज खाली फर्स्ट लाइन है, उसका कॉस्ट. बाकी तो सब एक बार वो आ गया तो मैनेज हो गया. 20. वेरी गुड. देखो ध्यान से पढ़ो सब लोग. मशीनरी हैड अ बैलेंस ऑफ 14,000 on 1190. The which was purchased on 1187. इतने का खरीदा था, दिया नहीं है, लेकिन क्या हम ढूंढ सकते हैं? ढूंढ सकते हैं. हाँ. यस. 3 साल का डेप्री ऐड करके. हाँ, तो डायरेक्टली वी कैन नॉट ऐड ना. 10% कैसे करने का? 100 लेके करने का. ओके, पहला वर्किंग नोट बना लो. ठीक है, कॉस्ट तो चाहिए. पीएफडी में आप कॉस्ट के बिना काम नहीं कर सकते.
क्योंकि assets are shown at cost, right? तो फिर what is RBM से the करना है FIM से सर करना है? FIM दिया है FIM इसमें सीधा 20,000 अज्यूम कर सकते हैं क्या? ऐसे फिगर्स देख के समझ जाता है ना। हाँ फिगर देख के समझ जाता है, बराबर है। तो डायरेक्टली भी लिख दिया 20,000 तो भी वांगा नहीं है, क्रॉस वेरीफाई ट्रायल एंड एरर मेथड। यस, ये आपको मेथड प्रैक्टिकल कोई भी ऑड फिगर आ गया तो कैसे करना है इसके लिए बता देता। सेम ही है, नॉर्मल है। इट इज लेट द ओरिजिनल कॉस्ट बी ₹100, let the original cost be ₹100. So original cost on 1187 will be ₹100. तो उसको क्या किया होगा, डेप्रीसिएशन 87, 12 महीना 10 रुपया FIM, so you get ₹90 on 1188। वापस उसको डेप्रीशिएट किया होगा 88 में 12 महीना ₹10 क्योंकि FIM कर रहे हो। You get WDV on 1189, ₹80, and the last year depreciation 89, 12 months, ₹10. You get ₹70, which is the WDV on 1190. 100 रुपया लेके कर लिया। Now we know this WDV is how much? 14,000 they have given us. So agar ₹70 is 14, though what was 100? X, simply cross multiply 14,000 into 100 divided by 70. You get your answer to be 20,000. Okay. 20,000 was the original cost of the asset. इसमें 1, 2, 3 कितने भी हो सकते हैं, we don't know. बट अपने को एक ही दिया था, 1187 को खरीदा है, तो हम लोग सब अज्यूम करें सब वही डेट पे खरीदे हुए एसेट है, दैट इज द अजम्पशन। और वहां से हमने डेप्रिशिएट करते करते यहाँ पे पहुंच गए। इज दैट क्लियर? बताओ, एनी डाउट इन दिस? यू गॉट द कॉस्ट ऑल ऑफ यू? नाउ लेट्स मूव टू द अकाउंट। मुझे बोलो ध्यान से, एक ही साल का अकाउंट बनाना है। कौन से साल का बनाना है? 1990 का बनाना। तो विल आई पास एनी एंट्री एज टू बैंक? खरीदने का एंट्री करूंगा? वो तो हो चुका है ना 1187 में, परचेज तो कब का हो चुका है, राइट? अभी क्या करना है, उसको डेप्रीशिएट 3 साल 4 साल डेप्रीशिएट करके जो बैलेंस मिला है, एकदम ध्यान से। तो बैलेंस कितना आएगा मशीनरी में? दिमाग लगाओ, मशीनरी में कितना बैलेंस आएगा? कॉस्ट 20,000। यहाँ पे 20 है। मशीनरी में तो 20 रहेगा ना कॉस्ट, उसको तो टच ही नहीं किया है मैंने। 1191 को मशीनरी में तो 20,000 ही दिखेगा, अग्री? अच्छा, पीएफडी में कितना दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट। 6,000। आई बैलेंस बीडी कितना दिखेगा? 6,000। सबको समझ आया 6 कहां से टपका? व्हाट इज दिस 6? 6 इज नथिंग बट अभी तक का जमा हुआ डेप्रीसिएशन। 20,000 पे 3 साल का चार्ज किया होगा ना, 2,000 2,000 2,000, वो सब जमा हो रहा है पीएफडी अकाउंट में। डिड यू अंडरस्टैंड? एंड कल एक इक्वेशन भी बताई थी तुमको, WDV प्लस PFD इज इक्वल टू कॉस्ट। ये वेरीफाई करके आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन में WDV दिया है 14,000 प्लस PFD 6,000 इज योर कॉस्ट 20,000। अंडरस्टूड? पढ़ कि नहीं? पढ़े आगे? तो बैलेंस मिल गया, शुभारंभ हो गया अपना। चलो पढ़ो आगे ट्रांजैक्शंस। Another machine of 10,000 was purchased on 1290, which was installed on 1490 at a cost of 2,000. Okay. तो एंट्री अपने को 2 करना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग डेट पे हो रहा है, बट एंट्री सेम ही होगा। एसेट खरीदा है और उसी को इंस्टॉल किया है। तो 1290 को 90 कर रहे हैं क्या? सॉरी, मैंने 91 लिखा। 90 बराबर है 1190।
तो 1 to 90 को टू बैंक कितने का खरीदा है हमने? 10,000 और उसी को इंस्टॉल किया ऑन 1490 को। वापस टू बैंक, एंट्री तो वही है, मशीन टू बैंक, क्योंकि एनी एक्सपेंस इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ एसेट विल बी एडेड अप टू द कॉस्ट कंसेप्ट टिल द टाइम इट इज पुट टू यूज। अभी एसेट की वैल्यू कितनी हो गई है? 12,000. बट डेप्री कहां से स्टार्ट होगा इस पे? 1490. 1490 से। याद है, बताया था डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ इंस्टॉलेशन अगर अलग अलग है तो डेप्रिसिएशन विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन। Then it is a machine having an original cost of 10,000 on 1187 was sold for 4,000. Let's make a working note for sale. Original cost on 1187 कितने का था ये? 10,000। ओके, अभी थोड़ा अगर टाइम बचाना है आपको तो 88, 89, 90 सब पूरा करने की दिखाने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट ऐड 3 ईयर का डेप्री। दीक्षित मेहता पागल हो गया। सर वो भाई जरा मस्ती कर रहा था, भाईला मारी द्यायचं। चलो, ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन 1187 इट इज 10,000। ओके, नाउ टिल 90 अपने को डेप्रिसिएशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, करना है तो करो इंडिविजुअली 1000, 1000, 1000 या सीधा लेस डेप्रिसिएशन फॉर 3 years from 87 to rather yeah 87 to 89, 87, 88, 89 साथ में दिखा दो, that is 3,000. So you arrive at what? WDV as on 1190 करंट ईयर पे आ गए ना सीधा 7,000 बराबर है। अभी जैसे वो 8 साल वाला किया था, उसके बाद करंट ईयर में कभी सेल किया है पढ़ो। व्हेन हैव वी सोल्ड इट? वी सोल्ड इट ऑन 1790 सेकंड लास्ट लाइन में देखो, लास्ट में। हाँ 1790, हाँ 1790 राइट, 1790 पे बीता है 1790। लेस डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर 90, दैट विल बी फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 months। 500 रुपया आएगा। You get WDV as on 1790, that is 6,500, and now you have sold it for how much? Sold for 4,000. I think we incurred a loss on sale of 2,500. सर डिसमेंटलिंग चार्जेस भी है। अरे हाँ, डिसमेंटलिंग भी है। वेट डिसमेंटलिंग चार्जेस दिया वेर 1000। डिसमेंटलिंग चार्जेस क्या करना है? सेल वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट। सेल वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट, करेक्ट। वो हाथ में कम मिलेगा, जैसे ब्रोकरेज माइनस। परचेज करते वक्त कोई खर्चा हो रहा है ऐड कर दो, सेल करते वक्त हो रहा है अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, माइनस कर दो। सो दिस विल बी 4 minus 1, 3,000 is my sale value and my loss will be 3,500. That loss will be 3,500. Is that clear? Now, record how many steps at the time of sale, remember? 5 steps. What was step number 1 in Patel by Yash Patel? सेल का 5 स्टेप में से फर्स्ट स्टेप क्या है? अनम्यूट तो करो। एसेट सेल में डालने का। नहीं, वीरती, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर। भाई पहले तो रिकॉर्ड करो, फिर निकालोगे ना उसको। पहले ही निकाल दोगे तो कैसे चलेगा? पहले तो रिकॉर्ड करो करंट ईयर का डेप्री। तो डेप्री टू पीएफडी। लास्ट समय ये नहीं था क्योंकि फर्स्ट डेट पे बेचा था। अभी स्टेप्स लिखवाया है, स्टेप्स रिवाइज करो, देखो पीछे ही है। तो डेप्री टू पीएफडी, तो पीएफडी में बाय डेप्री
करंट ईयर का डेप्रीसिएशन पहले चार्ज तो करो, फिर निकालना उसको। तो बाय डेप्रीसिएशन कितना आएगा करंट ईयर का? 500 रुपये। इज दैट क्लियर? देन second step, Ronak, what is the second step? Record the sale. Means Record the sale नहीं, remove the cost and remove the accumulated depreciation. Cost में से cost हटाओ और PFD में से डेप्री हटाओ। 1790 को cost कितना था मशीन का दिया हुआ था आपने को, दिख रहा है? 10,000 बाय एसेट सेल। इधर क्रेडिट करो 10,000 और बड़ा एसेट में से निकालो और छोटा एसेट में डालो। छोटा एसेट में टू मशीनरी अकाउंट, दैट इज हाउ मच? 10,000. Then what is the next step? Remove the accumulated depreciation from PFD. बराबर है? अभी एकदम ध्यान से ये प्रोविजन फॉर डेप्री में जो भी वो 10,000 का जमा डेप्री है पूरा निकालना है अपने। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में क्या लिखोगे? टू एसेट सेल अकाउंट। कितना आएगा? तो डिस्पोजल चलता है ना? 3,500. हाँ डिस्पोजल भी चलेगा, 3,500. एसेट सेल एसेट डिस्पोजल चलेगा। तो पीएफडी में एकदम ध्यान से देखना सब लोग। What is the total depreciation on this asset? 3,500. हाँ, ये 3 साल का 3,000 प्लस ये 500, 3,500. Is that clear? सबको समझ में आई बात? पूरा अभी तक का जमा हुआ करंट ईयर के साथ, पहले चार्ज करो फिर निकालो, तो निकालो यहाँ से 3,500। अभी तक का जमा हुआ डेप्री हटाओ यहाँ से और ट्रांसफर कर दो किधर? एसेट अकाउंट, छोटा एसेट है तो एसेट में आएगा बाय पीएफडी अकाउंट 3,500। इज दैट क्लियर? पहले 3 स्टेप समझ आए? चार्ज डेप्री, remove cost, remove accumulated debris. Now you can complete your sale and your profit loss. So what is the sale value? मैं बेचा उसको 3,000, डिसमेंटलिंग माइनस करके 3,000 में बेचा एंड लॉस हो गया। तो बाय लॉस ऑन सेल कितने का लॉस हो गया? लॉस हो गया अपना 3,500। ये ऑटोमेटिकली सेल्फ टैली होगा, इसमें कभी कुछ बैलेंस बचने वाला ही नहीं है। सी कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि बेचा था इसीलिए निकाल के अलग से रिकॉर्ड किया, वो नील ही होने वाला है। ये कॉस्ट था, ये WDV, ये निकाल के नील कर चला गया। कुछ WDV गया बैंक में, कुछ गया P&L में इन द फॉर्म ऑफ लॉस। बाकी तो पहले ही P&L में जा चुका था इन द फॉर्म ऑफ डेप्रीसिएशन। एसेट स्वाहा हो गया, एसेट इज नो मोर इन एग्जिस्टेंस। इज दैट क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और खरीदा है सेम डेट पे फॉर 15,000। व्हाट एंट्री यू पास? 1790 टू बैंक अकाउंट 15,000। परचेज में है, एसेट में 15,000। 5 स्टेप क्लियर है सबको सेल के? अभी भी किसी को डाउट? याद रखना, ऑर्डर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। पहले डेप्री, फिर रिमूव कॉस्ट, फिर रिमूव डेप्री, फिर सेल और फिर पीएनएल। चलो अभी इस पे डेप्री चार्ज करते हैं। अभी कितने मशीन है हमारे पास? देखो 20, 10, 10 + 2 12, 20, 12 और 15। क्या अभी भी 20, 12 और 15 के हैं हमारे पास? नहीं। 10, हाँ, 10, ओरिजिनल 20 में से 10 तो बेच दिया, तो अभी लास्ट वर्किंग नोट फॉर डेप्रीसिएशन ऑफ 90। मशीन 1 अभी 20 का नहीं है, वो 10,000 का ही रह गया, ये 10 तो बिक गया उसमें से, बराबर है?
तो 10,000 पे 10% फॉर फुल ईयर, क्योंकि ओपनिंग है, शुरू से आया है, तो 1000 रुपया। मशीन 2 है वर्थ 12,000। 12 कैसा हुआ? 10 + 2 और 10% उस पे। हाउ मेनी मंथ्स? 9 months. 9 मंथ्स। देखो 1 अप्रैल को इंस्टॉल किया था। स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो 9/12, तो 900 रुपए। और तीसरा वाला जो है मशीन 3, कब खरीदा है मशीन 3? मशीन 3 वी हैव परचेज्ड ऑन 1st July. 1 जुलाई, 15,000 फॉर 15,000 का 10% फॉर 6 months। 750 आ रहा है, 2650 आ रहा है। 2650 का एंट्री क्या होगा? परिशी कोठारी, व्हाट शुड बी द एंट्री फॉर 2650? Depre to PFD. डेप्री टू पीएफडी। तो पीएफडी में बाय डेप्रीसिएशन 2650 समाप्त करना है। 31/12/90 एज द ईयर, सॉरी 31/12/90। कर लो बैलेंस, कहानी खत्म, खादू पीदू राजपूत। 32, 37, 47, 47 minus 10 is 37। इधर कॉस्ट ही दिखेगा, कितने मशीन का कॉस्ट है अभी? 3 मशीन का। कौन सा 3 मशीन? 10, 12 and 15। 31/12, that will be 2 balance BD। Is that clear? पीएफडी को भी बंद करना है, पीएफडी को भी बंद करना है। इधर आ जाएगा 2 बैलेंस सीडी। 6 + 2 8 9150 9150 minus 3000 5650 5650 5650 31/12/90 एंड 1191 को बनेगा बाय बैलेंस 5650। एसेट सेल तो टैली हो गया। डेप्री में क्या जाएगा? तो खाली 2 पीएफडी 2 पीएफडी, 2 बार ही आएगा 2 पीएफडी 2 पीएफडी। एक आएगा 17 को, एक आएगा 31/12 है 500 and 2650 31/12/90 को जाएगा बाय PNL 3150। जस्ट 1 ईयर का अकाउंट्स था। कर लो चंपला, कर लो। अभी आइडिया आ गया, आगे पीछे ऊपर नीचे पीएफडी का, कहां से कौन सी चीज आ रही है, क्या करना है सेल के वक्त। जो अभी उठाते हैं राक्षस, लास्ट सम फॉर द डे, सम नंबर 26। इसमें जर्नल एंट्रीज आने का चांस बहुत नेग्लिजिबल है, कभी पूछते नहीं है। सपोज आया तो कैन यू राइट द जर्नल एंट्रीज? आई गिव यू फॉर वन सम, विल प्रैक्टिस दैट। जर्नल एंट्रीज मैनेजेबल है इसका। जो डेबिट क्रेडिट है, जो अभी मैंने, जो अलग एंट्रीज है वो मैंने लिखवा दिया तुमको 5 सेल का, बाकी तो सब सेम है। परचेज ऑफ एसेट इज एसेट टू बैंक, डेप्रीसिएशन का डेप्री टू पीएफडी, ट्रांसफर का पीएनएल टू डेप्री से। ओके, इसमें जर्नल एंट्रीज नहीं आए। जर्नल एंट्री अगर नॉर्मल सम है तो उसमें दे लास्ट, उसका बराबर से करना। कंफर्टेबल? पीएफडी क्लियर है सबको? सबको बना लो। चलो एग्जाम 26 draw it up। Sum number 26।
मॉड्यूल का सम है ऊपर से। ये सम आपको आ गया तो आपको पीएफडी का पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया। सर ऐसे सम में सर एक बार सेल आएगा वैसा ही आएगा? अभी आपका क्वेश्चन आंसर हो रहा है, ये सम में 3 सेल है। पर ऐसा सम 10 मार्क्स के लिए थोड़ी आएगा। नहीं, 10 मार्क में ये चांस नहीं आने का। मर्डर है, मर्डर 10 मार्क। इसमें से कुछ भी पार्ट पूछ सकते हैं, मॉड्यूल में है तो इट कैन कम दैट वे। चलिए ड्रॉ कर लो। इसमें भी बनाने का अपने को शायद 1 ही साल का है। यस 2015 लेजर अकाउंट्स फॉर 2015 जस्ट 1 ईयर। अभी हमने जो प्रॉब्लम किया ना वो टाइप का, बट विथ मल्टीपल मशीन्स। ये प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है कंपनी में। समझ लो तुम कंपनी का अकाउंट बना रहे हो, कंपनी में कोई 1-2 मशीन नहीं होती है, काफी सारे मशीन्स होती हैं, काफी सारे टाइम पीरियड्स में खरीदते बेचते हो। दिस इज व्हाट हैपेंस प्रैक्टिकल। एकदम प्रैक्टिकल सम है तुम्हारा पीएफडी का, जो एक्चुअली होता है कंपनी में। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो इंफॉर्मेशन समझो, अच्छे से समझो। इंफॉर्मेशन समझ में आ गई ना तो प्रॉब्लम आप खुद से ही कर पाओगे, ऐसा हो जाए। A firm's plant and machinery account at 31st December 15 and the corresponding depreciation provision account broken down by year of purchase are as follows. Okay, so 31st December actually 14 का है, 31st December 14 का दिया हुआ है। Okay, I'll tell you how to do that. During 2015 करना है अपने को। वो एक्चुअली तुम्हारा 1st January 2015 का बैलेंसेस, 1st January 2015 का बैलेंसेस दिया है। Okay? Yeah, 1st January 2015 का बैलेंस है, not 31st December 15. It is 1st Jan 15. Okay, 1st Jan 15. देखो 15 का बनाने का, तो वो लोग ने दिया हुआ है, क्या इन्फो दिया है, 1998 में ईयर ऑफ परचेज है पहला कॉलम। तो 1998 में खरीदी हुई मशीन थी 2 लाख की, वो कॉस्ट है उसका, और बाजू में उसका डेप्रिसिएशन प्रोविजन, मतलब जमा हुआ डेप्रिसिएशन अभी तक। ओके, 1998 में खरीदा हुआ मशीन का कॉस्ट था 2 लाख, जमा हुआ डेप्रिसिएशन प्रोविजन 2 लाख। फिर 2004 में खरीदा था एक और 3 लाख का, उसका जमा हुआ डेप्री दिख रहा है। फिर 2005 में खरीदा था, उसका जमा हुआ डेप्री है। 2006, 2013, 2014 ऐसे करके टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट दिया हुआ है अपने को 30 लाख, ठीक है। और उस पे टोटल जमा हुआ डेप्रिसिएशन टिल टुडेज डेट, टिल टुडेज डेट मतलब टिल 31st December 14 या 1st Jan 15। ऊपर वाला फर्स्ट डेट है ना, वो 31st December 14 है। You got that? तो वहां तक का जमा हुआ डेप्रिसिएशन और कॉस्ट का इंफॉर्मेशन अपने को दे दिया है। फिर नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ो। सर ये हर एक साल का Depreciation is एडिशनल, ये हर एक साल का एडिशनल परचेज है कि जो एंड ऑफ द ईयर में बैलेंस रहता है वो है? नहीं नहीं नहीं, हर साल का एडिशनल परचेज। इसीलिए तो देखो ना कॉस्ट में ऐड होते जा रहा है। तुम इमेजिन करो मशीनरी अकाउंट, पहले साल खरीदा 2 लाख तो बैलेंस रहेगा 2 लाख, फिर और खरीदा 3 तो बैलेंस हो जाएगा 5, फिर और खरीदा 10 लाख का तो बैलेंस हो जाएगा 15 लाख, फिर और खरीदा 7 लाख का तो बैलेंस हो जाएगा 22 लाख। Are you getting that?
वैसे खरीद के टोटल अभी तक तुम्हारे पास 6 मशीन है, 1 2 3 4 5 6 मशीन है तुम्हारे पास, ठीक है, जिसका कॉस्ट इज 30 लाख एंड जिस पे जमा हुआ डेप्रिसिएशन इज 21,35,000. गॉट इट? 6 डिफरेंट मशीन्स. उसके बाद दिया है डेप्रिसिएशन इज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कॉस्ट. सो व्हिच मेथड आर वी डूइंग? FIM. It is the company's policy. Now this line is very important. It is the company's policy to assume that all purchases, sales or disposal of plant occurred on 30th June in the relevant year for the purpose of calculating depreciation irrespective of the precise date on which the events occurred. Statement का मतलब समझ में आया? क्या बोलना चाह रहे हैं? डेट कोई भी हो लेकिन 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन 6 लगेगा. महीने का ही होगा परचेज हाँ. सेल सब पे. मतलब अज्यूम करना कि जो भी परचेज या सेल डिस्पोजल, परचेज या सेल हो रहा है वो कब हो रहा है? 30th जून को हो रहा है. 30th जून को मतलब खरीदा है कोई एसेट, मतलब ये ऊपर की जो लिस्ट दिखाई दे रही है ना, वो अज्यूम करनी है सब 30th जून को खरीदा है. और जो भी बेचने की बात करेंगे आगे वो भी 30th जून को ही अज्यूम करें. 6 महीने का डेप्ट, खरीदे हुए साल में भी 6 महीना, बेचे हुए साल में भी 6 महीना. सिंपल एज दैट. और डेट्स का झंझट नहीं है. ये समझ में आ गया? पक्का समझा? नाउ ड्यूरिंग 2015 द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस. करंट ईयर की बात चल रही है अभी. ऊपर तो ओपनिंग बैलेंस दिया था अपने को. करंट ईयर में क्या हुआ? परचेज्ड अ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 15 लाख. कब खरीदा होगा? 30th जून को ही खरीदा होगा ना यार. अभी तो दिया है ऊपर. कुछ भी परचेज सेल हुआ है तो अज्यूम इट इज 30th जून. ठीक है. प्लांट, सेकंड पॉइंट, प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2004 फॉर 1,70,000. ऊपर देखो 2004 टोटल कितने का था? 3 लाख का था. उसी में से होगा ना ये 1,70,000 क्या और कोई रहेगा? उसी में से रहेगा, वही रहेगा. तो प्लांट इट वाज परचेज्ड फॉर 1,70,000 इन 2004 वाज स्क्रैप्ड. स्क्रैप्ड का मतलब 1 रुपया नहीं आया. जीरो सेल वैल्यू. स्क्रैप्ड मतलब जीरो सेल वैल्यू. सिंपल एज दैट. ओके. देन प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2005 फॉर 90,000. ऊपर देखो 2005 में टोटल कितना खरीदा था हमने? 10 लाख. उसी में ये होगा ना 90,000 भी. अग्री? समझ आ रहा है? तो ये 90,000 का was sold for 5,000. And plant that had been bought in 2006 for 2,40,000. 2006 में देखो ऊपर कितना खरीदा है? टोटल 7 लाख का खरीदा है. तो उसमें से ही होगा ये 2,40,000. करेक्ट? तो ये 2,40,000 का प्लांट was sold for 15,000. 15,000 में बेच दिया हमने. हेलो. डेटा का मतलब समझ में आ रहा है? There are 3 sales and 1 purchases. 3 sales and 1 purchase. Now calculate. You are required to calculate the provision for depreciation of plant and machinery for the year ended 31st December 15. एक ही साल का बनाना है अपने को. Provision for depre. In calculating this provision, you should bear in mind that it is the company's policy to show any profit or loss on the sale or disposal of plant as a completely separate item in the P&L account. वही हम करते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस जो भी रहेगा प्लांट का वो अलग एसेट डिस्पोजल अकाउंट में दिखा के अलग से पीएनएल में दिखाते हैं बाय पीएनएल टू पीएनएल करके. बराबर है? कुछ नहीं भी दिया है तो भी सेम करने का है तुमको. क्योंकि इसमें एक और मेथड होता है जिसमें एसेट सेल अकाउंट नहीं बनता. डायरेक्टली हम कॉस्ट और पीएफडी से पूरा सेल एडजस्ट कर ले. लेकिन वो तुमको नहीं है और वो अभी मैं करवाता नहीं हूँ क्योंकि फिर इट विल बी और कंफ्यूजन. ओके. वो कंपनीज भी वो फॉलो नहीं करती है, खाली थियोरेटिकल मेथड है, इसके लिए निकाल दिया. Companies always follow this asset sale wala type. Okay? Remove the cost and transfer it to a separate account. That way it is. So बाद में P&L अलग से दिखाना है. Then you are also required to prepare the following ledger account for 2015.
प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड सेल और डिस्पोजल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। 3 अकाउंट बनाने हैं 1 साल का। तो करना क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है ये समझ में आ रहा है? इंफॉर्मेशन में अपने को बैलेंस का ब्रेकअप दे दिया है, कॉस्ट का बैलेंस का ब्रेकअप दिया है, पीएफडी का बैलेंस का ब्रेकअप दे दिया मल्टीपल एसेट का। फिर करंट ईयर में देयर आर 3 सेल एंड 1 परचेज, उसको खत्म करना है और फिर डेप्रिसिएशन करना है ऑन द रिमेनिंग एसेट। ओके, नाउ इट इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन कैलकुलेशन एंड कैलकुलेशन। देखते जाओ। स्टेप नंबर 1, शुरू कहां से करना है? 2015 को स्टार्ट कहां से करोगे? Machinery to balance brought down 30 lakhs. परफेक्ट, ऑल ऑफ यू गेट दिस। मशीनरी अकाउंट में जो पहले ओपनिंग बैलेंस है वो लिख दो। सो ऑन 1/1/15 Jan to December का साल है, टू बैलेंस बीडी 15 lakhs। ओके, सॉरी 30 ना? नहीं 30 lakhs। 30 है ना टोटल कॉस्ट? 30 lakhs, यस। दिस इज द बैलेंस ऑन 1/1/15। ऊपर जो दिया है वो डेट का करेक्शन है, 31 December 14 का बैलेंस 1/1/15। इसी एसेट पे आज तक कितना जमा हो गया है डेप्रिसिएशन वो भी दिया है अपने को, दिख रहा है? 21,35,000 21,35,000 बाय बैलेंस बीडी। यस, So buy balance BD on 1/1/15. Buy balance BD on 1/1/15, 21,35,000. Can you look at this info and tell me what is the WDV, present day book value of the asset? 30 lakh minus 20 Minus 65. 2135, which is 8,65,000. 8,65,000. All of you understood? Now, let's proceed with the transactions of this year. Purchase of plant and machinery amounted to 15 lakh. क्या होता है एंट्री परचेज ऑफ प्लांट का? आई थिंक इट इज प्लांट टू बैंक। अज्यूम करना है कभी खरीदा? 30th जून। वो तो अपने को प्लेट में सर्व करके दे दिया, डेट की झंझट ही नहीं है अपने। 30th June 15 को बोला ही है ऊपर, कोई भी सेल हो कोई भी परचेज हो, अज्यूम करना 30th June हो रहा है, मिडल ऑफ द ईयर हो रहा है। टैक्सेशन में भी ऐसा ही होता है। टैक्स अपना कंपनी है ना, अलग अलग डेप्री चार्ज करता है अकाउंटिंग के हिसाब से जितना यूज हुआ होता है। बट टैक्स डिपार्टमेंट जब आएगा आपका अकाउंट चेक करने को, तो वो तो बोलेगा कि भैया 6 महीने से कम वापरा है ना तो 0 डेप्री, और 6 महीने से ज्यादा वापरा है तो पूरे साल का डेप्री लगा दो। उसके हिसाब से वो लोग अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करता है और आपको बोलता है वो प्रॉफिट पे टैक्स। फिर हम वो सब रिकंसाइल करते हैं, वो सब आएगा आपको इंटर में। AS22 में आता है। So this is two balance BD 30 lakhs and two bank 15 lakhs on 30th June. यहां तक समझ में आ गया? अभी सेल हो रहा है। सेल के वक्त हाउ मेनी स्टेप्स? टेल मी। 5 स्टेप्स। पढ़ो। पहला, प्लांट दैट हैज बीन बॉट इन 2004 फॉर 1,70,000 वाज स्क्रैप्ड। अभी पहले तो थोड़ा इमेजिनेशन यूज करो अपना, और साल देखो कौन सा है। 2004 में खरीदा हुआ प्लांट है, तो मैंने कब खरीदा होगा 2004 में ये प्लांट? 30 June. 30th June. जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, डोंट राइट दिस। 30th June 04 को खरीदा रहेगा ये 1,70,000 का। अग्री? तो 04 में 6 महीना वापरा है, करेक्ट? हेलो, अभी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? एफआईएम का रेट 10%. 10% है। कैन यू टेल मी द लाइफ ऑफ द एसेट बेस्ड ऑन दैट? 10 years. 10 years। तो मतलब कोई भी एसेट 10 साल के ऊपर हो ही नहीं सकता है। 10% ही कर रहे हो सब पे तुम, करेक्ट? तो अभी इसको हमने 6 महीना वापरा 04 में, फिर 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 तक इसके 9 साल और कंप्लीट हो गए हैं। एंड
2014 में आई थिंक पहले 6 महीने में ये 0 हो चुका है, 0 0 0 0 0, करेक्ट और नो? यहां पर ये 0 हो चुका है। कब 0 हो चुका है? 30th जून 14 को ये प्लांट की वैल्यू 0 हो चुकी है। ये समझ आ रही है बात की नहीं? ये 10 साल ऑलरेडी बीत गए हैं, तो क्यों रखा था इसको ऐसे ही 12 महीने तक और अभी डिस्कार्ड कर रहे हो 30th जून 15 में? जब तक चलता है तब तक चलाने का ना। जब तक चलता है तब तक तो चलाओ ना यार, बुक में 0 हुआ है। तुम्हारा एयर कंडीशन का वैल्यू है 50,000 जो 5 साल तक चलेगा ऐसा लगता है तुमको, तो बुक में उसको 5 साल के ऊपर डेप्रिशिएट कर दो। अभी बुक में 0 हो गया तो चल रहा हो एसी को निकाल के फेंक दोगे क्या? नहीं, बुक में 0 हो गया, मेरे को नहीं चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो वापरो, फोकट का बेनिफिट मिल रहा है, इस्तेमाल करो, खर्चा तो कुछ है नहीं, मजा करो, खर्चा पूरा राइट ऑफ कर दिया तुमने। डिड यू अंडरस्टैंड? तो ये डेप्रिसिएशन कभी एग्जैक्ट नहीं मिलेगा अपने को, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलने वाला है, जजमेंट के ऊपर, एस्टिमेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो जब तक चल रहा है, 1 साल और चला तो अभी डिस्कार्ड कर रहा है, तो स्टेप्स तो वही इस्तेमाल करने अपने को 5 स्टेप्स। लेकिन दिमाग में याद रखना, ये जितना कॉस्ट था पूरा का पूरा डेप्रिशिएट हो चुका है। ये समझ में आ गया बात? चलो, नाउ ओरिजिनल कॉस्ट, व्हाट आर द 5 स्टेप्स? चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर। कुछ होगा कि नहीं? दिमाग का इस्तेमाल करो और बोलो, करंट ईयर का कोई डेप्री चार्ज होगा कि नहीं होगा? इसमें नहीं होगा, पूरा ही खाली है, डेप्रिशिएटेड है, तो हटाओ, वो स्टेप गया। स्टेप नंबर 2 क्या था? रिमूव द कॉस्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट, करेक्ट? रिमूव द कॉस्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो प्लांट एंड मशीनरी में जाओ और तो लिख दो 30th जून 15 को क्या लिखोगे? एंट्री क्या होगी? बाय व्हाट? बाय व्हाट? By disposal. एसेट डिस्पोजल अकाउंट या एसेट सेल अकाउंट। कितना? 1,70,000। तो कॉस्ट में से कॉस्ट निकाल दिया। अभी इसको मैं टाटा बाय बाय कर रहा हूँ, बहुत वापरा, लाइफ से ज्यादा वापर लिया, तू जा। तो अभी बाय एसेट डिस्पोजल हो गया और सामने उसका जमा हुआ डेप्री भी निकाल दूंगा मैं। तो कहाँ पे पड़ा है जमा हुआ डेप्री उसका? पीएफडी में पड़ा है। कितना होगा जमा हुआ डेप्री? ओरली बोल सकते हो देख के। 170,000। 1,70,000 ही होगा। तो 2 एसेट डिस्पोजल अकाउंट या एसेट सेल अकाउंट 1,70,000 निकाल दो यहां से, बराबर है? बचा हुआ करस्पॉन्डिंग एंट्री डाल दो इधर। एसेट डिस्पोजल में क्या आएगा? 30th जून 15 को 2 प्लांट एंड मशीन अकाउंट 1,70,000 और 30th जून 15 को बाय पीएफडी अकाउंट 1,70,000। अब इट वाज स्क्रैप्ड। स्क्रैप्ड का मतलब 0 वैल्यू हो गई है इसकी, ऑलमोस्ट करेक्ट। स्क्रैप्ड का मतलब इसकी वैल्यू तो 0 हो चुकी है, राइट और नो? बराबर है ना? तो कोई सेल वैल्यू आएगी, बैंक आएगा, लॉस आएगा, प्रॉफिट आएगा? नहीं, कुछ नहीं। लेकिन समझो आपको भंगार का 5-10 हजार मिल गया तो मजा। पूरा का पूरा 10,000 वुड बी योर प्रॉफिट, है ना? क्योंकि बुक वैल्यू तो 0 है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इधर मैं सेल वैल्यू दे देता 10,000 रुपया तुमको, तो बाय बैंक 10,000 और 2 PNL 10,000, पूरा प्रॉफिट हो जाता ना। बैठा दिमाग में? तो एसेट का बुक वैल्यू 0 होने के बाद भी वो चल सकता है, तो बिजनेस में रख दो उसको। फिर जब बेचोगे अगर कुछ मिला तो पूरा प्रॉफिट है, नहीं मिला तो ठीक है, 0 ही है वैसे भी। यहां तक समझ आया बात कि किसी को कंफ्यूजन है? बताओ मेरे को, बोलो 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 बोलो। बढ़े आगे। सेकेंड सेल, प्लांट एंड मशीनरी बॉट इन 2005।
was sold for 5,000. 2005 में खरीदा था, ठीक है, 2005 में. तो अभी दूसरा प्लांट देखो, इसका थोड़ा ढंग से करना पड़ेगा वर्किंग नोट. ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन 30th June 05. ऑब्वियसली जून को ही खरीदा रहेगा, दिया है अपने को. कितने का खरीदा था? 90,000. इसका भी जीरो ही हो जाएगा ना, फुल डेप्री. 4500 बाकी रहेगा. हाँ 4500 बाकी करंट ईयर में हो रहा है. देखो ओरिजिनल कॉस्ट वाज 90,000 ऑन 30th June 05, राइट. अभी 30th June 05 से पहला साल में कितना वापरा रहेगा? 6 months, राइट. और फिर फुल ईयर, तो 05 का 6 month हो गया. आई एम राइटिंग इट ओवर हियर. 05 का 6 महीना हो गया. फिर 0, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक करो. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 is the current year. So can I say it has been already used for 9.5 years? Correct or no? तो इस पे अभी तक का कितना जमा हुआ डेप्रिसिएशन है? 9.5 ईयर का जमा हो चुका है. 9.5 साल का लंबा वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं अपने. सीधा क्या कर सकते हो? डेप्रिसिएशन माइनस करने का फ्रॉम 30th June 05 to 31st December 14. 9.5 years. 9.5 years का कैलकुलेशन कैसा होगा? 90,000 पे 10% इंटू 9.5 कर दो सीधा. 85,500. अपॉन 12 मत कर देना. कितना आया? 85,500. 85,500. Did you understand? बेसिकली 95% हो गया ना. FIM 10% था. 9 साल का 90% और आधे साल का 5%. 95% से वो डेप्रिशिएट हो चुका है. ये कैलकुलेशन समझा कि नहीं? पक्का? हेलो. नहीं तो आराम से कैलकुलेटर पे करो. 90,000 पे पहला साल 4,500, 6 months. फिर -9, -9, -9, -9, -9, -9, 9 साल तक करो तो यही मिलेगा 85,500 माइनस करने का. Is that clear? So you arrive at WDV as on 1/1/15. करंट ईयर पे आ गए. 4,500 का WDV है on 1/1/15. कब बेचा? 1/1/15 में कब बेचा है? जून. 30 जून. तो और डेप्री होगा कि नहीं होगा करंट ईयर का? होगा. कितने महीने का होगा? 6 months. 6 months का होगा. कितना होगा? RBM नहीं कर रहे हो, FIM कर रहे हो. 4,500. 4,500 होगा. 4,500 होगा. तो what is my book value on or WDV on 30th June 15? 30th June 15 को क्या हो रहा है? WDV 0 हो रहा है. 0 बुक वैल्यू 0 हो गया. और अभी उसको स्क्रैप भी किया, इमीडिएटली बेचा भंगार में. कितना मिल रहा है पैसा? 5,000 मिल रहा है. 5,000. अभी आई गिव यू एन एग्जांपल. Profit. कोई एसेट पड़ा रहेगा, 0 हो गया, बेच दिया, जो मिला वो प्रॉफिट हो गया. तो प्रॉफिट हो गया कितने का? अपना 5,000 का. इज दैट क्लियर? पहला वाला एसेट का सेल वैल्यू वाज 0, सो नो प्रॉफिट नो लॉस. दूसरा वाला एसेट में है सेल वैल्यू, जो मिला वो प्रॉफिट. क्यों यहाँ पे पूरा प्रॉफिट हो गया? समझ में आया? क्योंकि द बुक वैल्यू हैज बिकम 0 नाउ. कंफर्टेबल? रिकॉर्ड करना है. हाउ मेनी स्टेप्स अगेन एट द टाइम ऑफ सेल? टेल मी. 5 स्टेप्स. नंबर 1, Manantita. Number 1, what is the first step? For current year. Depreciation for the current year. तो PFD में आएगा by depreciation. Depri to PFD is the entry. कितना है current year का depri? 4,500. Agree? All of you got that? Depri to PFD 6 महीने का 4,500 PFD में by depri.
सेकेंड स्टेप क्या है? कौन है ये? प्रियल बोलो। remove the cost of the रिमूव द machine sold कॉस्ट फ्रॉम द प्लांट एंड मशीनरी, अक्यूमुलेटेड कॉस्ट निकाल, उसमें से कॉस्ट निकालना है। एंट्री क्या होगा? बाय एसेट सेल या बाय एसेट डिस्पोजल अकाउंट। क्या थी ओरिजिनल कॉस्ट इसकी? 90,000। इसको निकाल देना ऑन 30 जून 50। और एसेट डिस्पोजल में आएगा टू प्लांट एंड मशीन, टू प्लांट एंड मशीनरी 90,000. What is the third step? What is the third step, Krisha? We transfer the depreciation. Okay, accumulated depreciation transfer करना है। एंट्री क्या होगा PFD में? By asset sale. नहीं, two asset sale and by PFD in asset sale. हाँ। और अमाउंट बोलो, क्या अमाउंट आना चाहिए? टोटल डेप्री, हाँ टोटल डेप्री टिल डेट। वर्किंग नोट देखो, वर्किंग नोट 90,000 क्या ही आ जाएगा? देखो इरर भी दिख रहा है, ये डेप्री है ना, दिस इज 85,500 प्लस करंट ईयर का 4,500, तो टोटल डेप्री कितना हो गया? 90,000। लॉजिकली भी सोचो ना, अभी 0 हुआ है तो पूरा डेप्रिसिएशन हो चुका है इसका। 90 का 90,000 उस पे जमा हुआ डेप्री निकालो, ठीक है? तो पीएफडी में 90,000 टू एसेट डिस्पोजल और एसेट डिस्पोजल में बाय पीएफडी 90,000। इज दैट क्लियर? अब चेक करने का, इसका भी हालत एक्चुअली ऊपर वाले मशीन जैसा ही था, लेकिन ऊपर वाला मशीन का कुछ भंगार मिला ही नहीं, इसमें मिला 5,000। तो एंट्री क्या मिला अपना को? बैंक टू मशीन, बैंक टू एसेट सेल, तो एसेट सेल में बाय बैंक 5,000। ये हुआ फोर्थ स्टेप, स्टेप नंबर 4। और प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो आई थिंक अच्छा प्रॉफिट हो गया मेरा, तो टू प्रॉफिट ऑन मशीन 5,000, टू प्रॉफिट ऑन मशीन 5,000। समझ में आई बात? फिफ्थ स्टेप इज योर प्रॉफिट और लॉस। इज दैट क्लियर? दोनों सेल बैठा दिमाग में। अभी थर्ड सेल पे जाते हैं। थर्ड सेल तुम लोग भी खुद से ट्राई करो, अभी ईयर वर लेके मैं भी बनाता हूँ वर्किंग नोट। थर्ड सेल क्या दिया था? acquired in 2006, ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन 30 जून 06 कितने का acquire किया है? 2,40,000। अभी 06 से 14 तक पहले जंप मारो, बड़ा सा जंप, लॉन्ग जंप। लेस डेप्रिसिएशन फ्रॉम 30th June 06 from 30th June 06 to 31st December 14। यहाँ तक कितना टाइम हुआ देखो? जून का 6 महीना, 06 का 6 महीना हो गया, 06 का 6 महीना, 07, 08, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.5 years मिल रहा है मेरे को, 8.5 year। और FIM है तो कैसे करोगे कैलकुलेट? 2,40,000 पे 10% इंटू 8.5 डिवाइड बाय 12 मत करना, मंथ्स नहीं है, ईयर्स है। कितना आ रहा है? 2,04,000। 2,04,000 मिलेगा, 2,04,000 मिलना चाहिए। So you arrive at WDV as on 31st December, rather write 1115। 1115 का कितना आ रहा है? 46,000 आ रहा है, नहीं 36 is the WDV on this date। समझ आया है बात? All of you got this? 36 after 8.5 years it is 36। अभी करंट ईयर 15 में बेचा, कब बेचा? जून में। लेस डेप्रिसिएशन 2015 में 6 months, कितना आएगा?
12,000. 12,000 ओरिजिनल कॉस्ट FIM है 2,40,000 पे लेना 2,40,000 पे 6 months is 12,000 10%. Arrive at WDV on 30th June 15, that is 24,000. Correct? Got it? And now sale. कितने में बेचा इसको? हमने 15 में बेचा, तो क्या हो गया? लॉस हो गया. Loss on sale of 9,000. Is that clear? बोलो. सबको समझ आ गया सेल का नोट? एनी डाउट? प्रस्थान करें आगे. चलो. How many steps at the time of sale? We discussed that. Anuj Desai, step number 1 क्या होगा? म्यूट पे हो भाई. हाँ, पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. एंट्री क्या होगा? डेप्रिसिएशन टू PFD. PFD करंट ईयर का डेप्री. अमाउंट क्या होगा? 12,000. 12,000. डेट इज 30th June 15. तो बाय डेप्री का डेप्री अकाउंट में आएगा करस्पॉन्डिंग एंट्री. डेप्री अकाउंट भी बनाया हुआ है यहाँ पे, इसमें भी चाहिए तो लिख दो. 30th June 15 दो एंट्री किया हमने. टू PFD 4,500, टू PFD 12,000. Depri to PFD. Step number 1, charge current year's Depri. Step number 2, Isha. What is step number 2? Remove the cost of asset from the asset account. Asset account में से cost निकालो. तो buy asset disposal account. कितना था cost? 2,40,000. Remove that on 30th June 15. Go to asset disposal. Asset disposal में 2 plant and machine, that is 2,40,000 on 30th June 15. Third step, Hemangi Khona. What is the third step? Hemangi. Yes, sir. Third step. Third step is removing it from the third step is to remove the asset from the actual account and transfer it to the asset sale account. वो तो हो गया, asset तो कर लिया. That was second step. Third step में उसका प्रॉफिट और नहीं, ये सेल रिकॉर्ड करना है ना. वो तो फोर्थ और फिफ्थ है. दो चीज ट्रांसफर करते हो ना. सब कुछ बोल दिया उसको छोड़ के. ओरिजिनल कॉस्ट में से कॉस्ट निकालो और PFD में से उसका जमा हुआ डेप्रिसिएशन निकालो. बराबर है? हाँ. तो यहाँ पे टू एसेट डिस्पोजल, PFD में से उसका जमा हुआ डेप्रिसिएशन निकालना है. दैट इज द नेक्स्ट स्टेप. वीडियो क्यों ऑफ है? वीडियो ऑन करो. चलो बोलो मेरे को. हाउ विल यू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन नाउ? हाउ विल यू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन? टोटल डेप्रिसिएशन टिल डेट कैसे मिलेगा? वर्किंग नोट देखो. 2,04,000 है प्लस 12 करंट ईयर का भी ले लेने का. अभी तक का पूरा 2,16,000 मिलेगा. 2,16,000 मिला. पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन आई एम रिमूविंग फ्रॉम PFD 2,16,000 and I am transferring it to asset disposal as by PFD account 2,16,000. Okay, so remove cost from cost, remove accumulated depreciation from PFD. Then Dikshit Mehta, what are the next two steps? सेल रिकॉर्ड होगा ना बाद. तो एंट्री क्या होगी सेल की? बैंक टू एसेट. बाय बैंक बाय लॉस ऑन सेल. बैंक टू एसेट सेल. कितने में बेचा? 15 में. और लॉस है ना, तो बाय PNL या बाय लॉस ऑन सेल. बाय लॉस ऑन सेल अकाउंट. कितना है बाय लॉस ऑन सेल? दैट इज 9,000.
ये हो गया अपना सेल का स्टोरी खत्म। बैठ गया दिमाग में? ये हो गया अपना सेल का एंट्री यहां तक का। ओके बस परचेज हो गया, सेल हो गया, खत्म। अभी क्या करना है? डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीन। Last note I'm making for depreciation on the remaining assets. Working note 3. Depreciation for the year 2015. Depreciation for the year 2015. किस पे करना है? कॉस्ट पे या WDV पे? कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिविजुअली भी लिख सकते हो या जो एसेट बिक गया उसको माइनस करके डायरेक्टली ले लो, योर विश। मैं इंडिविजुअली कर रहा हूँ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सो टेल मी, पहला वाला मशीन 98 वाला 2 लाख वाला, उस पे लूं कि नहीं? नहीं। पहला वाला 2 लाख पे लेना है डेप्री कि नहीं लेना? नहीं। बोलो नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? पूरा का पूरा राइट ऑफ हो चुका है। पूरा राइट ऑफ हो चुका है, दिख रहा है? 2 लाख का 98 है भैया, हम लोग 2015 में, तो 2008 में उसके 10 साल खत्म हो चुके हैं, जीरो हो चुका है वो, फिर भी क्यों रखा हुआ है? अभी तक काम आ रहा होगा, इसके लिए रखा है उसको। 7 साल से काम आ रहा है, चलो चलाओ, बढ़िया है। डेप्री मत कर देना उस पे कैलकुलेट। क्यों नहीं करोगे? समझा? ऑलरेडी डेप्रिसिएशन हो चुका है पूरा, 10 साल खत्म हो गया उसका। 3 लाख वाला 2004 वाला करना है उस पे? नहीं। 10 लाख 2005 10 लाख करोगे कि नहीं? करोगे। लेकिन क्या यू विल डू इट ऑन 10 लाख? 90,000 वाला तो यार। हाँ देखो ध्यान से, उसी में से बेचा है, दिख रहा है? तो मशीन 1 सीधा लोगे तुम 10 लाख माइनस 90, उसी में से 90 का बिक गया है ना। हेलो, डिड यू अंडरस्टैंड? 10 लाख में से 90 वाला बेच दिया तो बचा कितना? 9 लाख 10। 9 लाख 10 पे 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? दिमाग लगाना थोड़ा, दिमाग। 6 months. 6 months Why not 12 months? बेचा है ना बीच में से। अरे वो तो 90 वाला बेचा है, बट सर अच्छा हुआ 9 लाख 10 तो पूरा साल वापरा रहेगा ना। 6 परचेज भी हाफ ईयर ही किया रहेगा ना, तो 10 साल उधर खत्म हो जाएगा। 10 साल खत्म हो रहा है, दैट इज द मेन रीजन। 10 ईयर खत्म हो रहा है उधर उसका। देखो कब खरीदा है हमने वो 2005 वाला, 2005 के जून में आया होगा, आधा साल तो गया। 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो 14 दिसंबर 2014 के दिसंबर तक 9.5 years are already done. Now we are in 2015. 2015 में you might have used but only for 6 months. मतलब वापरा पूरा साल है, नो डाउट, अभी तक पड़ा हुआ है, स्क्रैप नहीं हुआ है, बट डेप्रिशिएट कितना होएगा? खाली 6 महीना होएगा, क्योंकि 6 महीना बचा था बुक में उसका वैल्यू। समझा? नॉर्मली ये हर बार 12 महीना होता है, इधर लफड़े वाला काम है। सीधा आंख बंद करके 12 महीना जंप मत मार देना, क्योंकि उसका लाइफ ही खत्म हो रहा है यहाँ पे 6 months। ओनली फॉर 6 months you will charge. That will be how much? 40,500. 40,500 आया। समझा ये क्यों 6 महीना लिया? अदर मशीन पे भी 6 महीना क्यों लिया? नॉर्मली अदर मशीन पे हर बार 12 महीना रहता है, लेकिन इधर 45,500 नॉर्मली 12 महीना रहता है, इधर ही 6 महीना लिया क्योंकि लाइफ खत्म हो रही है। ओके, तो बी अलर्ट। 2006 वाला 7 लाख विल यू टेक? पहले आपको बोलो डेप्री लेना है कि नहीं लेना है? 7 लाख वाले पे आएगा कि नहीं? आएगा। आएगा। अभी 7 लाख पे आएगा कि कोई और अमाउंट? 2,40,000 माइनस कर। हाँ देखो उधर दिया है, उसी में से 2,40,000 वाला सेल किया है तुमने, इस साल बेच दिया उसको, तो बचा कितना? वो 7 लाख वाले में से बचा कितना? 460,000। 460 बचा है।
तो 4,60,000 पे 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? दिमाग लगाओ जरा। 12. ये 12 मंथ्स आएगा। इसका 10 ईयर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, उंगली पे वापस कैलकुलेट कर लो। 06 का 6 महीना, चलो 06 को मारो गोली। 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14। तो टिल 2014 का एंड इट इज 8.5 ईयर और 1.5 ईयर बाकी, मतलब 15 पूरा और 16 का आधे में ये जीरो होएगा। 2016 के हाफ में ये जीरो होएगा। इज दैट क्लियर? इस पे तो ये पूरा साल यूज हुआ है। 12 महीना डेप्रिसिएशन, दैट इज 46,000। करेक्ट? आर यू गेटिंग इट? डेप्रिसिएशन कैसे करना है? नेक्स्ट 5 लाख वाला 2013 में अक्वायर किया है, उस पे आएगा कि नहीं? बोलो, आएगा ना? 12 months. कितने टाइम का? 12 महीने का आएगा। ये 5 लाख वाला भी का, इसको तो बहुत टाइम है। ये तो 2023 में जीरो है, अभी तक तो चालू ही है। ये 50,000 डेप्रिसिएशन का मीटर चालू है। और 3 लाख वाला तो रिसेंटली खरीदा है 2014 में। तो 3 लाख वाले पे 10% लास्ट ईयर खरीदा हुआ है, तो ये साल कितना? 12 महीना, तो कितना होएगा? 30,000 रुपीज। करेक्ट? ऑल ऑफ यू विथ मी टिल दिस पॉइंट? एनी डाउट्स? बताओ बताओ बताओ। बढ़े आगे। अभी खत्म कि एक और बाकी है? एक बाकी है, 15 बाकी है भैया। कौन सा बाकी है? कौन सा बाकी है? परचेज किया ना 15 लाख। करंट ईयर का 15 लाख वाला बाकी है। करंट ईयर का परचेज बाकी है, तो 15 लाख का 10% कब खरीदा होगा? 6 months. जून में, तो 6 महीना, तो कितना होएगा? 75,000। What is my total depri on the other machines? 96, 126, 246,500. 246,500. 246,500. Yeah, perfect. 246,500 आना चाहिए तुमको। मिला कि नहीं बताओ? 2,46,500 कैलकुलेशन समझा हर एक का? Actually, it is common sense. You have to just see the purchase date, calculate the years and do it. Calculation पे alert रहने का बस, बाकी कुछ है नहीं rocket science, थोड़ा बड़ा समय और कुछ नहीं। तो this is 246,500 का डेप्री कैलकुलेट करके रिकॉर्ड करना है। एंट्री क्या बनेगा अक्षित हरिया? What will be the depreciation का एंट्री? डेप्री टू पीडीएफ, पीएफडी। पीएफडी यार। By depreciation 246,500, 31, 12, 15 और डेप्री में भी लिख दो 31, 12, 15 को 2 PFD 246,500। समाप्त। बैलेंस करो, बैलेंस। पहले मशीनरी को बैलेंस करो। मशीनरी का बैलेंस है ना, क्वेश्चन में से भी देख के, ये भी कॉस्ट ही है। सिंपल सा लॉजिक है। कॉस्ट में कॉस्ट ऐड करो तो 30 था, उसमें 45 हो गया, अभी 15 लाख ऐड हो गया, और जो कॉस्ट निकाला था उसको माइनस किया। सिंपल। बाय बैलेंस सीडी क्वेश्चन में से भी करके देख सकते हो। 45 लाख माइनस कितना? 40 लाख 40 एग्जैक्ट। ओके, 40 lakhs। 31, 12, 15 को आ गया, ये हो गया 1, 16 को 2 बैलेंस बीडी 40 लाख। ये 40 लाख में कौन सा मशीन पड़ा हुआ है? सबको बैठ गया दिमाग में? 2 लाख वाला है, 3 लाख वाला है, 10 लाख में से गया, 10 लाख वाला पूरा गया, 7 लाख में से 4,40,000 वाला है। ओके, 10 लाख वाला भी है, सॉरी गया नहीं है, डेप्रिशिएटेड है लेकिन पड़ा है, डिस्कार्ड नहीं किया। 10 लाख में से 9,10,000 वाला है, 90 वाला बेचा है। 2 लाख वाला है, 3 लाख वाला है, 9,10,000 वाला है, 7 लाख में से 4,60,000 वाला है, 5 लाख वाला में से 5 लाख वाला पूरा है,
और 3 लाख वाला पूरा। अच्छा, ऊपर वाला 3 लाख में से 170 गया है तो 130 बचा है, वो वाला है। ओके, ये कॉस्ट का कंसेप्ट समझा। 40 लाख जो बचे हुए कॉस्ट के मशीन है, ऑल आर देयर। ओके, जो बिक चुके हैं खाली उसको निकाला है। देखो, डेप्रीसिएशन भले ही 0 हो जाए बट मशीन चलती रहेगी, तो बुक्स में दिखती रहेगी। जब तक सेल या डिस्कार्ड नहीं हो जाता तब तक यू वुड बी एबल टू फाइंड दैट एसेट। ओके, नाउ तो 0 हो जाएगा तो स्क्रैप हो वैल्यू गया। पे ही दिखाएंगे पीएफडी को ना। करो बैलेंस। सॉरी, 0 हो गया तो स्क्रैप वैल्यू पे दिखाएंगे ना मशीनरी बुक्स में। 0 हो गया ना तो अपने को कॉस्ट और मार्केट जो भी बुक वैल्यू उस पे लेसर वैल्यू पे दिखाने का रहता है ना, स्क्रैप वैल्यू पे नहीं। अच्छा अच्छा, स्टॉक के जैसा। तो इधर 0 ही सबसे कम, तो 0 पे ही दिखता है। लेकिन समझो तुमने अज्यूम किया था स्क्रैप 5000, तो तुमको 5000 मिलेगा आफ्टर डेप्रीसिएशन बुक वैल्यू, और भंगार में मार्केट भाव चल रहा है 3000, तो तुम उसको 3000 पे दिखा ऐसा। लेकिन यहाँ पे तो वी आर अज्यूमिंग स्क्रैप इज नील, तो 0 ही सबसे लोएस्ट है, तो 0 पे ही दिख रहा है। जस्ट लाइक स्टॉक, कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस। तो इधर आएगा टू बैलेंस सीडी ना है, टोटल करो। टोटल इज 23,98,000। 28, 23 लाख 28, 98 Balance is 19,22,000. 19,22,000 का बैलेंस, प्लीज चेक। 19,22,000 का बैलेंस। जो स्क्रैप नहीं हुआ है, बिका नहीं है, वो सब दिखेगा मशीन, ये याद रख। कॉस्ट में कॉस्ट, इसमें जमा हुआ डेप्री। भले ही इसमें 2-3 ऊपर वाले मशीन 0 वैल्यू के हैं, लेकिन काम दे रहे हैं, उसको डिस्कार्ड नहीं किया, पड़े हुए। ये मिला सबको? बस पीएनएल में डाल दो डेप्री को लास्ट 31/12, 15 को बाय पीएनएल। एसेट डिस्पोजल तो टैलीड रहेगा, उसमें खाली टोटल लिख के खत्म कर देना। 2,63,000. एसेट डिस्पोजल का नहीं डेप्री का 2,63,000 बाय पीएनएल 2,63,000। 5 लाख एसेट डिस्पोजल का 5,05,000। यस। लो, ये कहानी समाप्त हुई। देख लो अच्छे से, डाउट है तो बोल दो, एंड दैट्स इट फॉर द डे। क्लियर नाउ पीएफडी? ओके, आज के लिए भी शायद आपको कुछ खास होमवर्क मिलेगा नहीं। जस्ट रिवाइज दिस मेथड, रिवाइज द स्टेप्स। ओके, कुछ डाउट्स है तो यू वेट, अदरवाइज वी आर मीटिंग टुमारो सेम टाइम। बाय बाय, टेक केयर। सर